Okay. 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 So hello. I am Vakar Sayyed Mohammad Vakar. So I'm gonna discuss the February GK material. So this is my first class and I don't have any experience. So please bear with me. Okay. So is this screen visible? I am sharing with you guys. Yes, sir. Yes, yes, it Okay. is Okay. visible, but can you zoom in a bit? Because I am not sure if it is visible. It is visible, but the text are not readable. Okay. Okay. One second. Is it okay now? I have rotated my screen. I guess it should be. Yeah, yeah, it is better now. Great. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Okay. So uh, can anyone tell me what are the topics? Are you going with the topics or just covering everything under the sun? Is there a number of topics that you have selected for covering? Can anyone just unmute and tell me? Hello. So as per I know, there is no any particular topics. So we are covering date-wise whatsoever we feel like important. So that way we are covering everything. Uh, okay. Okay. Cool. So let's start with the Odisha border dispute. Okay. So this is the dispute recently uh, came up. It is in the Kotia Panchayat in the Koraput district of the Odisha. So it is a village which is border on the Odisha and Andhra Pradesh state. It is on the bordering line. So you have to. So what are the key points you have to take from it? First of all, there is a issue. uh, There is a border issue between two states, between the state of Odisha and Andhra Pradesh. So you have to know that border village name. That village name is Kotia Panchayat. This Kotia Panchayat is located in the Koraput district of Odisha. Second point you have to take out from it is that the history of Odisha. So as we know, Odisha was carved out from the Bihar Bengal province, which was in the late 1936, 1936. This was carved out. Odisha was carved out from there. So and then we have to go through the what are the border disputes are also with the Odisha. So there are four border disputes with this state. Uh, what are the other borders? So it all are mentioned here. So the disputes are over the Kotia villages in Koraput district or bordering Andhra Pradesh, and this is the only major border conflict. And this was came up recently uh, in the current affairs. So you have to take a point on it. Okay. So do you guys have access of this material? This PDF. Do you guys have this material? No, sir. Okay, so have you read this? सर क्लास वाले के बाद क्लासरूम में अपलोड करते हैं वीडियो. हाँ अपलोड करते हैं तो पढ़ा हुआ है ये. नहीं सर. Okay, cool. So from the next class onwards, try to at least cover some topics from whichever PDF is uploaded on the classroom. Try to cover some topics, read it by yourself, and then come in the class. So we will discuss about what are the your like if there are some doubts, we can clear on that. If you want to know some extra info about that, we can also go on to that. Because there is nothing much to teach in the GK. We can just follow certain patterns. Okay, so what we can do is that people upload these materials on the classroom. So you must have read this earlier before joining the class. And secondly, try to grasp it, or I will say, try to point out some important things from it. I will also explain what are the important things from this period, and you should also be prepared earlier. Okay, so from next class, please pay attention to this thing. Okay, so
Actually, I haven't read this PDF, so it's tough for me to do this. Okay, let's talk about the low conviction rates under UAPA Act. So first of all, what is the UAPA? Can anyone explain? Have anyone read about UAPA? Okay, so it is the act which was passed in 1967, and its full form is Unlawful Activities Prevention Act. So the problem with this act is that it was prepared for arresting the terrorist organization and also the individuals, which was the latest amendment in it. So this act was intentionally it was created to arrest to stop the terrorist activities. But nowadays, people allege that it is used for arresting the activists or other marginalized other people from the marginalized communities who raise questions against the government. So you have to learn about that. The conviction rate in the UAPA is very low. It is just 2.2% of cases uh, are ended in the conviction. Others just get bail. So for this, you have to just go through its history. When was the UAPA enacted? It was enacted in 1967. What was its earlier version? So its predecessor, which was enacted in 1995. You don't have to learn all these dates. Just learn there is UAPA, which was enacted in 1967. The full form of UAPA is Unlawful Activities Prevention Act. These are the certain points you must know. And another thing you have to note is that there is low conviction rate in the UAPA, which is just 2.2% of the cases gets convicted. 2.2% of the cases only get convicted by court. Okay, so these are the important points. And the side news you can go through about it, like the pupils who are arrested right now under the UAPA, like Umar Khalid, Natasha Narwal, and many other activists are arrested under UAPA. They are still in the jail. Last year, there was a person called name. I am forgetting his name. He was attached to the Bhima Koregaon case. So, uh, so you have to know the names of those persons who are under arrest. Those are activists who are under arrest under the UAPA Act, so that you get to know everything related to the UAPA, because this topic is very much in news, and there are high chances that some passage or GK question can come up on this topic. Okay, so everything is detailed in this PDF. So main provisions, it's given that their history is given that unlawful activities refer to actions related to cession and cession of territories. Following the 2004 amendment, Terrorist Act was added to the list of offences. The Act assigns absolute power to the central government, by way of which, if the centre deems an activity as unlawful, then it may, by way of official gazette, declare it so. Under UAPA, the investigating agency can file a charge sheet in maximum 180 days. So you have to note this. The maximum date under which the agency have to file a charge sheet is 180 days. Otherwise, in the normal condition, they have to charge sheet in. They have to file charge sheet in just 90 days. But they get extra 90 days in this UAPA. So that is the difference. So activists can be jailed for 6 months before even charges being filed on them. So this is the you can say the benefit of arresting under UAPA for the government side, or the sad part about for the citizens or the activists. So mind you, this UAPA is for stopping the terrorism. Its main goal is to stop activities related to secession or sedition, all these things. That is those anti-national activities, stop anti-national activities. But in reality,
it is alleged that mostly it is used for arresting the activities, for for silencing the government dissenters. So you have to understand what is the standpoint of the government, what is the standpoint of the activists or dissenters on this UAPA Act. Okay, so are you getting me? Sorry. Hello, hello, anyone? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, okay, okay. So please stop me if you get bored in between. I don't know, are you guys getting or not? Should I speak in Hindi or it's okay? Both language, sir. Sir, both. Okay, okay, cool. So there was the amendment in 2019, 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कि एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं. यानी 2019, before the amendment of the 2019, only the organization can be declared as terrorist organization and the people associated with that can be arrested. But now government has amended in 2019 that even individual can be arrested under terrorism, because they are very lone wolf attacks. You must have heard about lone wolf attacks, where only single person goes and do the terrorist activity without even associating with any big terrorist organization. So becoming difficult for the government to arrest that person under the terrorism, any terrorism act, because all the terrorism act was created to stop the terrorist organization, not the individual. So this amendment was came up in the 2019, that even an individual, यानी कि एक सिंगल इंसान को भी, एक अकेले इंसान को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करके अरेस्ट कर सकते हैं. तो ये अमेंडमेंट हुआ था 2019 में. अब इस अमेंडमेंट के चलते क्या हो गया कि पहले तो थोड़ा बहुत मतलब था कि हाँ नहीं अरेस्ट कर सकते हैं या कुछ और करना पड़ता है, पर अब तो सिंगल इंडिविजुअल है तो अब किसी को भी चाहे तो अरेस्ट कर सकते हैं. लास्ट ईयर एक कपिल खान थे, डॉक्टर थे, जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड कमी हो गई थी गोरखपुर के हॉस्पिटल में. यू मस्ट हैव हर्ड दैट स्टोरी. तो उनको उसके अंडर में अरेस्ट कर लिया गया था और वो लगभग पूरा 1 साल तक वो रहे थे जस्ट बिकॉज दिस अंडर दिस यूएपीए. Okay. So you have to remember the key points. What are the key points? Number one, UAPA is Unlawful Activities Prevention Act. Second point, it was enacted in year 1967 and amended it मतलब recently amend हुआ है 2019 में, जिसमें 2019 में ये कहा गया है कि एक इंडिविजुअल भी टेररिस्ट एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं. Okay, there are some issues given with the UAPA here. So I am reading just from here. So UAPA undermines individual liberty. It gives the state authority vague powers to detain and arrest individual who it believes to be indulged in terrorist activities. यानी कि किसी को भी terrorist activist समझ के अरेस्ट कर सकते हैं. बहुत ही वेगली इसमें पावर दे दी गई है, कोई एक ठोस सबूत की जरूरत नहीं है इनको. They can just arrest. Thus the state gives itself more power individual liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution. यानी जो Article 21 of the Constitution है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में पढ़ा होगा, वो ग्रांट करता है एक इंडिविजुअल लिबर्टी, राइट टू लिव ग्रांट करता है. तो उसको बहुत ही ज्यादा तरीके से इस पे एक धक्का लगता है. आर्टिकल 21 पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है. आर्टिकल 21 का काम ही यही है कि आपको इन वेग चीजों से बचाना. स्टेट doesn't have power to arrest you for anything under the sun. They must give reason for it. But this UAPA gives a vaguely a large power to state to arrest the individuals. So that's the issue with the UAPA that you must know, because CLAT is not like a multiple choice. It is multiple choice question, but that question will be opinion based. The pattern is not changed, so there are opinion based question in the exam. So you can't get the one word question. So you have to know the issues with the UAPA. Who are the activities arrested under the UAPA? What is its goal? What is the goal of UAPA? And what others alleged it to be, what it is used for. Okay.
मतलब ये यूज किस लिए होता है, लोग एलिज करते हैं कि ये एक्टिविस्ट को अरेस्ट करने के लिए यूज होता है या डिसेंटर्स को अरेस्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंसेस में आपके ऑप्शन आ सकते हैं। ओके, सो एक इशू यहाँ पे यूएपीए के साथ आर्टिकल 21 का इशू हो गया। दूसरा इशू क्या है, अंडरमाइंस फेडरलिज्म। कैसे फेडरलिज्म? हमें पता है कि 3 लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। ओके, सो जो पुलिस है वो किसके सब्जेक्ट में आता है? स्टेट के सब्जेक्ट में आता है अंडर 7th शेड्यूल। ये लिस्ट कहाँ दी हुई है? ये सारी तीनों लिस्ट ये 7th शेड्यूल ऑफ इंडिया में ही है, और ये बोलती है कि जो पुलिस का काम है वो स्टेट के अंडर में आता है। बट यूएपीए क्या बोलता है कि वो किसी को भी, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी देता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है, वो किसी भी स्टेट में जाके किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। तो बेसिकली जो पुलिस का काम है वो कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया इसके। तो ये एक तरीके से आपकी फेडरलिज्म को भी अंडरमाइन करता है। तो ये इशू हो गया। एक इशू और है, ये हम पढ़ते हैं यहाँ से, इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू डिसेंट। The right of dissent is part and parcel of fundamental right to free speech and expression, and therefore cannot be abridged in any circumstances except for mentioned in Article 19, subclause 2. The UAPA 2019 empowers the ruling government under the garb of curbing terrorism to impose indirect restriction on right of dissent, which is detrimental for a developing democratic society. So वही चीज है जो मैंने बताया कि डिसेंटर्स को अरेस्ट करने के लिए यूज होता है, जो कि एक तरीके से आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 का भी वायलेशन है। उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी गई है, बट ये अंडर द गार्ब ऑफ कर्बिंग टेररिज्म। आपने कुछ गलत बोल दिया तो वो बोलेंगे कि ये सेडिशन का केस है, या फिर ये सेडिशन नहीं, ये कहते हैं एक तरीके से टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। कुछ भी आपने बोला तो ऐसा गवर्नमेंट एजेंसी आपके ऊपर इल्जाम लगा के आपको अरेस्ट कर सकती है अंडर यूएपीए, व्हिच इज अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2. So that is the issue with the UAPA. Number one issue with the UAPA is that uh, it affects the individual liberty, which is granted under the Article 21 of the Constitution. It restricts right to dissent, which is granted under Article 19, subclause 2, and it also undermines federalism. So you got your point. Hello. Yes, sir, got it. Okay. So are you guys noting those points? Sir, You sir. must be noting. Sir, I have one question, sir. Yeah. सर, जो यूटी के सब्जेक्ट यूटी का जो रहते हैं वो कौन से सब इसमें आते हैं? स्टेट और कौन सी लिस्ट में आते हैं? यूटी की लिस्ट के यूटी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादातर चीजें सेंट्रल, मतलब जैसे यूटी अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली एक स्पेशल है केस, लेकिन उसके अलावा बाकी यूटीज तो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। सिर्फ एक दिल्ली ऐसा केस है कि जहाँ पे आपको आर्टिकल 239 के अंडर दिया हुए हैं, उसमें केसेस कुछ हैं स्पेशल राइट, जैसे लैंड हो गया और पुलिस हो गया और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। लेकिन बाकी सब चीजें दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आएगी, जैसे कि मेडिकल इस तक का चीजें जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आएगी। तो ये यूनियन टेरिटरी का ये है, वो जब पढ़ाएंगे दिल्ली से रिलेटेड तो उसको पढ़ाया जाएगा। आपको पढ़ाया गया है क्या? नहीं सर। ओके, ठीक है। अच्छा, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट पता है ना? कंकरेंट लिस्ट पता है, बाकी नहीं पता है। ओके, बाकी नहीं पता है, ठीक है। इतना पता है जरूरत नहीं है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। और बेसिकली ऊपर ऊपर का पता होना चाहिए कि किस शेड्यूल में आता है ये लिस्ट जो दी हुई है, किस शेड्यूल में आती है, पता है? 4th? नहीं, 7th शेड्यूल में आती है। 7th शेड्यूल में आपकी लीगल की क्लास हुई है? लीगल की क्लास में शेड्यूल्स पढ़ाया गया है? ओके, ठीक है। मैं क्या कह रहा था कि whatever we are discussing here, you must be noting all the points. So I am telling you the points. मेरा आज फर्स्ट दिन है तो ठीक है, अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं, but still you must understand what are the important points I am telling, and you must note that. So under UAPA, what we have discussed, can anyone just summarize it? मतलब मैंने अभी क्या क्या पढ़ाया है, या फिर क्या आपको समझ में आया है, कोई समराइज कर सकता है यूएपीए के बारे में? क्या क्या समझ में आया, या अगर नोट करा हो तो वो नोट्स उठा के पढ़ दो कोई।
हेलो, सर एक्चुअली आई कांट सी योर मैसेजेस, सो प्लीज स्पीक, मतलब मैं पढ़ नहीं सकता, वो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। सर 2019 में अमेंडमेंट हुई है इंडिविजुअल टेररिस्ट अगर कोई इंडिविजुअल भी क्राइम करता है तो उसे टेररिस्ट एक्ट में पकड़ा जाएगा। एक है 2.2% कन्विक्टेड और एक है मैक्सिमम फाइल चार्जेस 180 डेज का। मतलब ज़्यादातर 180 डेज के लिए पकड़े जाएंगे, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली वो कम डेज के लिए पकड़ते हैं, लेकिन इस केस में उन्होंने 180 डेज के लिए पकड़ा है। और एक है स्टेट गिव्स इट्स मोर पावर, आर्टिकल 21 के बारे में। इट्स इंडिविजुअल और लिबरेटरी, बस इतना ये समझ। हाँ ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। और एक ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि जो यूएपीए एक रियलिटी में यूज होता है एक्टिविस्ट, डिसेंटर्स और इन सबके अगेंस्ट में यूज होता है। ऐसा आप बोल नहीं सकते कि यूज होता है, बट ऐसा एलिज किया जाता है कि दिस यूएपीए इज यूज अगेंस्ट द डिसेंटर्स or the activists or anyone who opposes the government or its functioning. Okay, got it. And also the UAPA full form, you must know that the Unlawful Activities Prevention Act, and it was enacted in the year 1967. ये तो मस्ट है, यूएपीए का फुल फॉर्म और किस ईयर में इनेक्ट हुआ था, 1967, ये मस्ट है। यूएपीए की तरह ही कुछ एक्ट आए थे, जैसे टाडा आया था, पोटा आया था, तो ये बारे इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कि टाडा आया था 1995 में, पोटा आया था 2004 में, बाद में ये रिपील हो गया था। रिपील क्यों हो गया था? रिपील इसलिए हो गया था क्योंकि उस टाइम पे भी लोगों ने यही बातें उठाई थी कि ये जो टाडा है, ये पोटा है, ये सब यूज होता है एक्टिविस्ट को अरेस्ट करने के लिए, डिसेंटर्स को अरेस्ट करने के लिए, और इन सब में भी कन्विक्शन रेट बहुत ही कम था। जैसे कि बताया हमने कि कन्विक्शन रेट इसमें सिर्फ 2.2% है यूएपीए। उसी तरह टाडा और पोटा में भी बहुत कम कन्विक्शन रेट था, और जो इंडिविजुअल लिबर्टी जो इफेक्ट होती थी इसके अंडर में, वो बहुत ही ज्यादा होती थी टाडा और पोटा के अंदर में। यानी किसी को भी अरेस्ट कर लेना, रैंडम बहुत वेगली पावर्स डिफाइन कर देना स्टेट की, बहुत ज्यादा पावर डिफाइन कर देना स्टेट की। So that was the lapsing point in the TADA and POTA. That is why they were revealed. So you must also note that TADA and POTA are like brother and sister of UAPA, which was enacted in the year 1995 and in the year 2004 respectively. But later on they were repealed. Currently there is only UAPA on the I'm not which is ongoing. And in case of Kashmir, if you will say this is the hello, sorry, I'm not hearing you properly. Hello, yes sir. Hello sir. Sorry, I am not able to hear clearly. Can anyone tell what he is speaking? सर आपका आवाज बीच में थोड़ा कट रहा है। Yes sir. Okay, so actually I am attending it from the phone and my laptop is not charged right now. Okay, is it okay right now? आवाज आ रही है? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। Yes sir. Yeah, okay, sorry. ठीक है, यूएपीए में इतना बताना था, तो अब यूएपीए का समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं सेडिशन लॉ पे। ओके, तो सेडिशन क्या है? सेडिशन मतलब आपने अगर कुछ भी बोल दिया अकॉर्डिंग टू सेडिशन डिफाइन कहाँ पे? सबसे पहले वो सेक्शन 124 बी में डिफाइंड है आईपीसी के, सेक्शन 124 ए में डिफाइन है, आईपीसी के डिफाइन है, ठीक है। और वो क्या बोलता है कि अगर आपने कुछ भी एक्ट करा है जिससे ये लगता है कि कुछ भी ऐसा एक्ट जो गवर्नमेंट के अपोजिशन से किया है, वो सेडिशन के अंडर में आएगा। ऐसा लिटरली ऐसा उसने बोला है, बट इन रियलिटी वो अगर आपने अगर ऐसा एक्ट किया है, बट वो एक्ट अगर आप आर्म्स उठाने के लिए बोल रहे हो, या किसी को बोल रहे हो बंदूक चलाने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसा अनलॉफुल जो कि फिजिकली एफेक्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, तब जाके वो सेडिशन में आएगा। पहले समझना है कि सेडिशन में क्या क्या आ सकता है, ठीक है।
सेडिशन में आपके जैसे कि गवर्नमेंट के खिलाफ वेजिंग वॉर आ सकता है, ठीक है, वेजिंग वॉर। दूसरा आपका आ सकता है कि लेट से एक इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है और आप बोल रहे हो कि कल जाकर पार्लियामेंट में अटैक करेंगे और सारे एमपीज को भगा के हम बैठ जाएंगे, जो कि एक राइटफुल तरीका नहीं है। राइटफुल तरीका ये है कि आप इलेक्शन में खड़े होइए, वोट लीजिए, तब जाके आप पार्लियामेंट में बैठिए। तो ऐसी जो हरकतें हैं वो सेडिशन में आएंगी, ठीक है। बट सेडिशन का मिसयूज इसलिए हो पाता है, सेडिशन का मिसयूज इसलिए हो पाता है क्योंकि जो पावर्स इसमें दे दी गई हैं वो बहुत ही वेगली मेंशन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं इस पे कि जब तक कोई उसमें हार्म के लिए नहीं बोलेगा, जब तक कोई फिजिकल जब तक वायलेंस नहीं आएगा इस कॉल में, कोई भी कॉल अगर हमने बनाई बोली कि हाँ जाके किसी को मार दो तो ये वायलेंस हो गया। लेकिन हमने ये बोल दिया कि सरकार काम सही से नहीं कर रही है, सरकार चोर है, मतलब इस वक्त इस तरीके की भाषा अगर हमने यूज करी, फिर भी सेडिशन में नहीं आना चाहिए, पर ये यूज हो जाता है सेडिशन के अंडर। सेक्शन 124A के अंडर अरेस्ट हो जाते हैं लोग। और इसमें भी इशू वही यूएपीए वाला है, जिसमें कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड दे दिया हमने। तो अब सेडिशन लॉ क्यों यूज में था, यहाँ पे लिखा हुआ, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड अ पॉलिटिकल लीडर एंड 6 सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम अरेस्ट इन मल्टीपल सेडिशन एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। कुछ सीनियर जर्नलिस्ट थे और पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनके खिलाफ सेडिशन का केस चला था। उस जर्नलिस्ट में एक राजदीप सरदेसाई नाम के भी एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो भी अरेस्ट थे। जितने भी अरेस्ट थे सब सीनियर जर्नलिस्ट थे। तो आपको कुछ का अगर नाम याद हो सकता है, जैसे राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे पे आते हैं, वो भी इसके अंडर सेडिशन के अंडर चार्ज किए गए थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने उन सबके खिलाफ से क्या कहते हैं सेडिशन का चार्ज हटा दिया, मतलब बेसिकली उन्हें बचा लिया सेडिशन के अंडर ट्रायल होने से। अब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, सेडिशन लॉ के बैकग्राउंड में। तो सेडिशन लॉ इनैक्ट कब हुआ था? सेडिशन लॉ 17th सेंचुरी इंग्लैंड के टाइम पे आया हुआ था। और वो किस पहले हमें पता है कि उस टाइम पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी, वहाँ क्वीन और किंग और क्वीन होते थे, मोनार्की होती थी बेसिकली। तो वो आपके क्रिटिसिज्म को सुन नहीं सकते, वो क्या सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ गुड ओपिनियन सुनना चाहते हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। वो कुछ भी आप बुरा बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे क्योंकि वो राजा है। आज ये नहीं है, आज क्या है, डेमोक्रेसी है। आज हम इलेक्ट करते हैं, यू नो, द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। पर इससे पहले इंग्लैंड में क्या था कि मोनार्की हुआ करती थी, किंग एंड क्वीन हुआ करते, तो इस वजह से सेडिशन लॉ लाया गया था। इंग्लैंड में पहले आया था, फिर बाद में यहाँ इंडिया में आया हुआ था। और माइंड यू, सेडिशन लॉ को रिपील कर दिया गया है इंग्लैंड में, बट इंडिया में अभी भी रिपील नहीं किया गया है, ये अभी भी चलता है सेक्शन 124A के अंडर आईपीसी के। हम बात करते हैं ये क्या लिखा, द लॉ वॉज ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन 1837 by Thomas Macaulay, the British historian politician, but was inexplicably omitted when the IPC was enacted in 1860। यानी सेडिशन का लॉ 1837 में ही था, बट फिर भी 1860 के आईपीसी में इसको डाला नहीं गया था, ठीक है। 1860 में जो आईपीसी, ओरिजिनल आईपीसी में सेक्शन 124 का कहीं, सेक्शन 124A यानी सेडिशन का कहीं जिक्र नहीं है ओरिजिनल आईपीसी में। बाद में 1870 में सेक्शन 124A डाला गया, यानी सब क्लॉज ए करके डाला गया, उसके अंदर सेडिशन को डाला गया, यानी एक अमेंडमेंट से आया है सेडिशन। ओरिजिनली सेडिशन आईपीसी में नहीं था, ये याद रखना है। और ये अमेंडमेंट कौन इंट्रोड्यूस किया था? सर जेम्स स्टीफन। ओके, और बेसिक पॉइंट्स हमको उठाने हैं यहाँ से कि पहली बात तो आईपीसी में ओरिजिनली सेडिशन था नहीं, 1870 में आया था, 1870 में आया था। सेक्शन 124A के अंदर मेंशन है। इसको किसने इंट्रोड्यूस की थी? सर जेम्स स्टीफन। इनका नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर अच्छी बात है अगर याद कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आई डोंट थिंक आने चाहिए, पर अगर याद कर लें तो अच्छी बात है। ओरिजिनली जो ये ड्राफ्ट था ये किसने प्रिपेयर किया था? इनका नाम याद रखना जरूरी है, जो थॉमस मैकले हैं। ओरिजिनली इन्होंने सेडिशन लॉ प्रिपेयर किया था। सेडिशन लॉ का जो ड्राफ्ट था ये थॉमस मैकले ने प्रिपेयर किया था, तो इनका नाम याद रखना जरूरी है। अच्छा, अब इसमें हम फेमस लोग का नाम याद कर लेते हैं। जो पहले पर्सन थे इसके अंडर ट्रायल होने, सेडिशन लॉ के अंदर ट्रायल किया गया थे, वो थे जोगेंद्र चंद्र बोस, जो कि न्यूज़पेपर चलाते थे बंगोबासी करके। और बाकी बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, इन सब के खिलाफ भी
सडिशन का केस लग चुका है, सडिशन के चार्जेस लग चुके हैं, वो ऑब्वियसली लगेंगे। अब तो ये बात याद रखना कि जोगेंद्र बोस जो है वो फर्स्ट इंसान थे जिनके खिलाफ ये सडिशन का लॉ अप्लाई किया था, जिनके खिलाफ ये ट्रायल हुआ था। अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो अमेंडमेंट आया था सडिशन का, ये आया था, वहाबी रिवॉल्ट चल रहा था 1875 के आसपास, 1870 के आसपास, तो उसी को रोकने के लिए, एक वहाबी मूवमेंट चल रहा था, उसी को रोकने के लिए ये सडिशन लॉ लाया गया था। अब वहाबी मूवमेंट क्या था उसमें नहीं जाएंगे, बट इतना याद रखना है कि एक वहाबी मूवमेंट का कुछ चला हुआ था 1870 के टाइम पे, तब जाके ये सडिशन लॉ आया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आज के टाइम पे क्या है सडिशन लॉ, होता क्या है। ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड में लिखा हुआ है, एनी पर्सन बाय वर्ड्स either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excite or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India। यानी कि अगर आपने सिर्फ डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दिया, आपने कोई स्पीच दी जिससे समझ में आ रहा है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ खुश नहीं है, जैसे आजकल कोविड केसेस चल रहे हैं, आपने बुराई कर दी गवर्नमेंट की, तो इससे आपका डिसअफेक्शन दिख रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इस केस में भी सडिशन अगर लिटरली देखा जाए तो आ सकता है। बट हमने बताया क्या कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जब तक वायलेंस का इसमें जिक्र नहीं आएगा तब तक सडिशन के अंडर आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। The moment the moment the word violence comes in, the moment the act of violence comes in your speech, then you will be charged under sedition. Otherwise, it's okay. It's protected under Article 19 subclause 2, which is the right to speech and free expression. Okay. सो इसमें बात दी गई है कि सडिशन एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी आपको बेल नहीं मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल से लाइफ टाइम तक के लिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको गवर्नमेंट जॉब से निकाल लिया जा सकता है। तो ये सब चीजें दी हुई हैं, ठीक है। ये यहाँ पे केस दिया हुआ है, 1950 में केस हुआ था, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एंड रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये सडिशन पे कुछ डिबेट्स हुई थी उस टाइम की, उस पे है इसमें। हाँ, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन था केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये इस जजमेंट को आप चाहे अंडरलाइन कर लीजिए, याद रख लीजिए कि इस जजमेंट से ही आया था कि वायलेंस का होना जरूरी है। इसमें क्या लिखा था, इट अपहेल्ड द constitutionality of sedition but limited its application to acts involving intention or tendency to create disorder or disturbance of law and order or incitement to violence। यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर दिया गया जो था incitement to violence। सॉरी, सो incitement to violence ऐड कर दिया गया था कब, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट के जजमेंट। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। पहला सडिशन लॉ आया कब था, ओरिजिनली आईपीसी में था नहीं, बाद में अमेंडमेंट करा गया था। और आईपीसी लॉ सडिशन लॉ डिफाइन ड्राफ्ट किसने किया था, एक थॉमस मैकले करके पॉलिटिशियन थे ब्रिटिश, उन्होंने ड्राफ्ट किया था। और ये किस टाइम पे आया था, वहां भी रिवॉल्ट चल रहा था 1870s में, उसी टाइम पे अमेंडमेंट करके सडिशन लॉ ला दिया गया था ताकि वो उन लोगों के खिलाफ जो मूवमेंट चला रहे हैं उनके खिलाफ अप्लाई करके उनके खिलाफ लगा के रोक लिया जाए। जो फर्स्ट पहली बार यूज हुआ था एक जोगेंद्र नाथ बोस थे, उनके खिलाफ 1991 में, ये 1891 में यूज हुआ था फर्स्ट टाइम सडिशन लॉ। ये पीडीएफ आपके पास मिलेगी तो आप यहाँ से चीजें देख लेंगे, बट स्टिल याद रख लीजिए कि मेन पॉइंट क्या है, मोटी मोटी बात यही है। और एक जजमेंट आया था 1962 का जो कि बोलता है कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं होगा तब तक आपको अरेस्ट किया नहीं जा सकता। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हेलो सर, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ, मैं ऑडिबल हूँ? यस ओके। अरे ऑडिबल है ना, तो ठीक है, सुन लो, ये पीडीएफ तो मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है? ओके, ठीक है। और इसके बाद इसमें दिया हुआ है कुछ, ठीक है, इसमें आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं, वो सडिशन दिए हुए हैं, तो वो पढ़ लोगे तो हो जाएगा। तो ठीक है, आज हमने 2 टॉपिक ही पढ़े, यूएपी और सडिशन पढ़े, पर इसमें काफी बेसिक चीजें से उठाया था तो इसमें टाइम लग गया। नेक्स्ट क्लास से ट्राई करेंगे और सारे टॉपिक्स को करने के लिए। आज नेटवर्क भी सही नहीं है और उसके बाद आई एम फास्टिंग, तो
I can't do more. So okay, sorry. थैंक यू सर. Okay. Okay, sir. Thank So you, sir. how was it? तो समझ में आया? ऐसे समझ में सर.